स्टूडेंट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है। यूनिट 4 का टॉपिक है ये, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। इसमें देखिए, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, वन ऑफ द लार्जेस्ट एसेट इन ए रिटेल और होलसेल बिजनेस इन द स्टॉक ऑफ गुड्स, any stock that a business keep to meet its future requirement of production and sales is referred to as inventory or stock in trade or simple stock. The basic reason for holding inventory is to keep up the production activities unhampered. Tangible property held for the sale in the ordinary course of business, in the process of production for such sale, for consumption in the production of goods or services for sale, including maintenance, supplies, and consumables other than machinery spares. Types of stock. The principal types of stock are: number one, raw material and supplies. Raw material and supplies represent goods kept a manufacturing concern prior to their being utilized in the production process. Goods in process, that is work in progress. It represents the semi-finished goods. They include those material that have been committed to production process but have not yet been converted into finished goods. Next, finished goods are completed goods in a manufacturing concern. They are final output of the production process. So next topic, objective of stock valuation. Number one, proper determination of gross profit. It means the proper determination of profit depend upon the proper valuation. If the ending stock is valued at a lower figure, profit is understand, and if it is overvalued, profit is overstated. Next, true financial position. Overvaluation of stock amounts to window dressing, which in turn gives wrong idea about the liquid position of the concern. Next, from management point of view, management of the enterprise is the interested in its financial condition, profitability and progress. It uses ratio analysis as tool to analysis the financial data. So next topic स्टार्ट होता है इसका, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन स्टॉक। स्टूडेंट, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन स्टॉक, फर्स्ट कॉस्ट प्राइस मेथड, और कॉस्ट प्राइस मेथड में नंबर वन है फीपो, फिर लीफो और हीपो। फीपो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, और लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, और हीपो हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। स्टूडेंट, फर्स्टली डिस्कस करेंगे फीपो मेथड पर, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। Under this method, the material first received in the store are first issued. That is the order in which the material are received in the store are issued at their cost price in the same order. स्टूडेंट, तो फर्स्ट शेड्यूल में दे रखा है डिफरेंट मेथड ऑफ वैल्यूएशन, ये वही टॉपिक चल रहा है उसका, यानी मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन स्टॉक। देखिए इसके एडवांटेजेस,
Advantages: this method is easy to understand and simple to operate. Number 2, the old material is issued first, यानी जो सबसे पहले आएगा सबसे पहले इश्यू को इश्यू किया जाएगा. Number 3, the price of material in hand at the end is found almost equal to the market price of such material. Next topic, disadvantages of FIFO. Number 1, it is very difficult to separately store the material purchased at the different price and on the different dates. Number 2, the price of the material issued to different jobs on the same date may be different. Number 3, as the material is issued on old prices, the production cost may not be equal to the market price. नेक्स्ट मेथड आता है इसका लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यानी कि लीफो. इन दिस मेथड द मटेरियल परचेज्ड इन द लास्ट आर फर्स्ट इशूड ऑन द कॉस्ट प्राइस. दिस मेथड इज सुटेबल इन ए पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइसेस. इसके एडवांटेज: दिस मेथड इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड सिंपल टू कैलकुलेट. नंबर 2, एज द इशू प्राइस रिमेन्स ऑलमोस्ट इक्वल टू द मार्केट प्राइस, the cost price of the product or job can be easily known. Disadvantages of LIFO. Number 1, the closing stock is priced at a very old price which does not show the correct position of the business. Number 2, this method is not practical because in practice the material which is purchased first is issued first. नेक्स्ट मेथड आता है स्टूडेंट इसका हीपो, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट मेथड. देखिए इन दिस मेथड द मटेरियल परचेज्ड एट द हाईएस्ट प्राइस आर फर्स्ट इशूड irrespective of the date of purchase. After this the material of the next highest price is issued. This method is based on the price that the highest price material should be consumed at the earliest. Thus the HIPPO method, the production is absorbs the highest cost of material and closing stock is valued at lower rates. Student of FIFO method का एक क्वेश्चन. Record the following receipt and issues of material in store ledger account. Adopting FIFO method of charging material issue. देखिए रिसिप्ट ये 5 मार्च 2006 200 यूनिट्स हैं. रेट ₹2.50 के हिसाब से. ऐसे 10 मार्च 2006 को 150 यूनिट्स ₹2.20 के हिसाब से. ऐसे 19 मार्च को 100 यूनिट्स हैं ₹2.40 के हिसाब से. और 22 मार्च को 100 यूनिट्स हैं ₹2.30 के हिसाब से. इशू है 6 मार्च को क्वांटिटी 250 यूनिट्स हैं. और फिर 12 मार्च को इशू किया है 200 यूनिट्स को. और फिर 25 मार्च को 250 यूनिट्स को. ऑन 1 मार्च 2006 स्टॉक इन हैंड वाज 200 यूनिट्स एट द रेट ₹2 पर यूनिट. स्टूडेंट ये क्वेश्चन. अब इसके बाद देखिए इसका सॉल्यूशन. स्टूडेंट देखिए इसका सॉल्यूशन. फीफो मेथड, स्टोर लेजर अकाउंट, ये इसका फॉर्मेट बनाएंगे. डेट, रिसिप्ट, इशू और बैलेंस. रिसिप्ट के देखिए 3 कॉलम हैं, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट. और इशू के क्वांटिटी, रेट, अमाउंट. ऐसी बैलेंस इसका क्वांटिटी, रेट, अमाउंट. सबसे पहले ईयर 2006, ये यूनिट्स में है क्वेश्चन पूरा. रुपीज़, यूनिट, रुपीज़, यूनिट, रुपीज़. देखिए 1 मार्च को वो कह रहा है कि स्टॉक इन हैंड 200 यूनिट्स ₹2.50 के हिसाब से. यानी कि स्टॉक इन हैंड यानी बैलेंस है इतना. 1 मार्च को 200 यूनिट्स ₹2 के हिसाब से ₹400 की. फिर 5 मार्च को रिसीविंग हुई है
कितनी 200 यूनिट्स की, किस रेट में है 2 रुपये 50 पैसे के हिसाब से, यानी कि 500 रुपीज़ की। फिर इस डेट को इशू कुछ नहीं किया है। अब बैलेंस देखिए, एक तो ये 200 रुपये 2 रुपये के हिसाब से 400 रुपये, इधर 200 ये आ गए, रिसीविंग हो गई 200 2 रुपये 50 पैसे के हिसाब से, यानी कि 500 रुपये की। अब 6 मार्च को इन्होंने क्या किया, इशू किया है 6 मार्च को, कितनी यूनिट को इशू किया 250। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, जो सबसे पहले आया है सबसे पहले उसको लेंगे, यानी 200 यूनिट तो ले लो 2 रुपये के हिसाब से 400 रुपीज़ की। फिर 50 यूनिट्स ले लो 200 इसमें से, 2 रुपीज़ 50 पैसे वाली, 2 रुपये 50 पैसे वाली 50 यूनिट्स 2 रुपीज़ 50 पैसे, यानी 125 रुपये की। अब देखिए बैलेंस कितना बचा, भाई ये तो कंप्लीट हो गई है, और ये 200 में से 50 ये ले ली तो 150 बची, तो 150 किस रेट की बची 2 रुपये 50 पैसे के हिसाब से 375 की। फिर देखिए 10 मार्च को 150 की फिर रिसीविंग हो गई 2 रुपये 20 पैसे के हिसाब से, यानी 330 रुपये की। अब इशू कुछ नहीं किया है। अब बैलेंस से देखिए 150 तो ये बचा है और 150 ये आ गई, ये 150 2 रुपीज़ 50 पैसे और ये 2 रुपीज़ 20 पैसे, तो 375 और 330 की। इसके बाद मार्च 12 मार्च को फिर इशू किया है इन्होंने 200 यूनिट्स को। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सबसे पहले तो इसको ले लो 150 2 रुपये 50 पैसे के हिसाब से, और 50 इसमें से ले लो क्योंकि 200 यूनिट्स को इन्होंने इशू किया है इसलिए। तो 50 इसमें से ले ली 2 रुपये 20 पैसे के हिसाब से, तो 375 110 ये हो गई। बचा कितना इसमें से, केवल 100 बचा, तो 100 यूनिट्स बची 2 रुपये 20 पैसे वाली, यानी 220 रुपये की। फिर स्टूडेंट मार्च 19 को देखिए, 19 मार्च को फिर रिसीविंग हुई 100 यूनिट्स की और 2 रुपीज़ 40 पैसे के हिसाब से, यानी 240 रुपीज़ की। इशू कुछ नहीं किया इस डेट को। बैलेंस एक तो ये बचा हुआ है 100 और 100 ये आ गए 2 रुपीज़ 40 पैसे के हिसाब से, तो 220 रुपये की ये बची हुई है 100 यूनिट, और 100 यूनिट ये 240 रुपये की। फिर नेक्स्ट मार्च 22 को देखिए, फिर परचेज किया है, इस रिसीविंग हुई है 100 यूनिट्स की 2 रुपये 30 पैसे के हिसाब से, यानी 230 रुपये की। इशू नहीं किया है। अब बैलेंस 100 और 100, यानी 100 ये और 100 ये, 2 रुपये 40 पैसे और 2 रुपये 20 पैसे। अब 100 फिर आ गई 2 रुपये 30 पैसे के हिसाब से, तो 100 2 रुपये 30 पैसे के हिसाब से 230 ये आ गई। फिर मार्च 25 को देखिए, रिसीविंग कुछ नहीं है। इशू कितना किया है 25 मार्च को 250, तो सबसे पहले तो इसको ले लो 2 रुपये 20 पैसे के हिसाब से। फिर 100 ये ले लो 2 रुपये 40 पैसे के हिसाब से। फिर 50 इसमें से ले लो 50 2 रुपये 30 पैसे के हिसाब से, 220 240 115। बचा कितना इसमें से, 50 यूनिट बचती हैं स्टूडेंट 2 रुपये 30 पैसे के हिसाब से, तो 50 यूनिट 2 रुपये 30 पैसे के हिसाब से 115 रुपये की। स्टूडेंट यही इसका आंसर था। थैंक यू स्टूडेंट।